Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on the topic of nuclei in physics, specially targeted towards Class 12 boards, IIT, NET, and CET syllabus. These videos aim to provide in-depth knowledge and understanding of the concept of nuclei, covering all the essential topics and concepts related to it. With the increasing competitiveness in the field of education, it has become essential for students to have access to quality study material that can help them excel in their academic endeavors. These videos, designed by experienced educators, are structured to cater to the needs of students preparing for various competitive exams, ensuring a thorough grasp of the subject matter. The series covers a wide range of topics, including nuclear properties, radioactive decay, nuclear fission and fusion, and various other important aspects of nuclei in physics. Each video is meticulously crafted to provide a comprehensive understanding of the topic, making it easier for students to grasp the concepts and apply them effectively during examinations. By providing such valuable resources, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of students and empower them to achieve academic excellence in their pursuit of knowledge. Whether preparing for board exams, IIT entrance, NET, or CET, these videos serve as an invaluable tool for students to enhance their understanding of nuclei in physics. ओके बच्चा पार्टी वी आर डन विथ एटम्स. एक्चुअली एटम्स एंड न्यूक्लियर आपका एक चैप्टर ये सीबीएसई में, लेकिन अपन एटम्स वी आर डन विथ इट. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी. सो दीज आर द फिनोमिना दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर. ओके, न्यूक्लियस को समझने के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अभी तक हमने जितना भी एटम के बारे में समझा, पढ़ा और जाना है, सर वो बेचारा पतला है तो उसको ऐसे दबाएंगे भाई साहब. तो आपका जो एटम्स है, एटम्स में वी वर जनरली ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इन इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज के चलते ही आपके सारे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते थे. एंड वी हार्डली बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर होते थे और जनरली किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन में इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता था. ठीक है, बट इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर देम टू पार्टिसिपेट? सो आंसर इज यस, बट यू वुड रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस. ठीक है, सो ये सारी तमाम चीजें हम यहाँ पे अभी कवर करेंगे और पढ़ेंगे. ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यूअल नेचर ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा आता है, ये सब हमने एटम्स में पढ़ा हुआ है. ठीक है, सो व्हाट इज atomic and mass number, which is something that you have studied in 9th and 10th standard. Okay, classification of nuclear density, shape and size, mass defect and binding energy. So these are the things that we are going to cover. Okay, चलिए प्रस्थान करते हैं भाई साहब. न्यूक्लियस, the majority of the mass and positive charge, आपका ज्यादा करके जो मास है किसी भी एटम का वो आपके न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है. Majority of the mass and the positive charge, obviously because protons and neutrons are there. So the entire positive charge and majority of the mass is centrally located inside the nucleus. Simple. ये सब मतलब कोई. Okay, the volume of nucleus is negligible as compared to the total volume of the atom. अभी आप देखो भाई साहब, radius of atom is to a tune of how much? 10 raised to minus 10 मीटर, मतलब एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है रेडियस एक एटम का अप्रोक्सीमेटली. और अगर न्यूक्लियस का रेडियस देखो अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू माइनस 14 से लेकर 10 रेज टू माइनस 15 तक. मतलब एक एटम का जो साइज है, एटॉम का जो साइज है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू, अभी देखो यहाँ पे क्या है 4 और 5, अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू 5 टाइम्स साइज ऑफ न्यूक्लियस. साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन टाइम्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस है. ठीक है, सो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी बहुत बड़े फुटबॉल फील्ड के बीच में आपने एक राई का दाना रख दिया, ठीक है, सो उसका जितना साइज होगा एक एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज भी उतना ही होता है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली देखो यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 10 है, एंड दिस इज व्हाट 10 रेज टू माइनस 14 टू 10 रेज टू माइनस 15. सो वी कैन से दैट एटम का जो साइज है इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू 4 टू 5 टाइम्स. एटम का जो साइज है, एटॉमिक साइज is approximately 10 raised to 4 to 10 raised to 5 times the size of nucleus. न्यूक्लियस के साइज के बराबर है. ठीक है, so it's a very less comparable size है. ठीक है, hardly any size at all. Okay, तो इंट्रोडक्शन भाई साहब यहाँ पे रदरफोर्ड्स डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस caused scientists to ask how the nucleus was composed. तो रदरफोर्ड ने तो भाई साहब डिस्कवरी कर ली. हालांकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी. एक तो डिस्क्रिपेंसी ये था कि भाई साहब आपके जो इतना
मतलब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इसीलिए हमको बोर की थ्योरी लगी। और दूसरा क्या था, व्हाट वाज द अदर डिस्क्रिपेंसी, कि भाई साहब कोई भी चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज इन अ मूविंग स्टेटस, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज हो, व्हेन इट इज अ मूविंग स्टेटस इट विल ऑलवेज रेडिएट एनर्जी। और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और अगर लूज करेगा so it is impossible to follow a path, it will follow a spiral path and fall into the nucleus, thereby the existence of atom is almost next to impossible। ठीक है, हालांकि इसको बोर ने खारिज किया और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही मूवमेंट होगा, दे आर नॉट सपोज टू मूव इन अदर ऑर्बिट्स। और ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स का रेडियस कैसे निकाला हमने, बताइए बताइए। आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं भाई साहब, स्टेशनरी ऑर्बिट का कैसे निकाला था हमने, electrostatic force of attraction is equal to the centripetal force, that is q1 q2 upon r का square, which is what mv square by r। अभी अंदर भाई साहब क्या है, k मतलब 1 by 4 pi epsilon नॉट है, q हो गया आपका ze और ये हो गया भाई साहब e अपॉन r का स्क्वायर। सो ये r और r से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं और v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज एक साथ आ गए। एक तो आपका भाई साहब जो बोर का था एम वी एल इज एम वी आर, दिस इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ये आया था भाई साहब आपके किससे, डी ब्रोगाइल के वेवलेंथ से। डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ भाई साहब क्या बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये होता है। ठीक है, और ये आया था कहां से भाई साहब, आइंस्टाइन के इक्वेशन से, और किसके इक्वेशन से भाई साहब, आपके मैक्स प्लैंक के इक्वेशन से। तो इन दोनों को हमने इक्वेट करके इसको लाया, फिर तमाम चीजें कड़ी एक साथ एक जुड़ी हुई है। ठीक है, सो ऑल दीज फॉर्मुलेज आर बेसिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। इन फॉर्मूलेज में प्राइमरली जो आपका रेडियस का या वेलोसिटी का, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। सो बट इफ यू हैव द कोर कॉन्सेप्ट्स आउट हियर, और कुछ वैल्यूज आपको याद रखने हैं, जैसे 21.8, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेडियस ऑफ फर्स्ट दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, दीज आर थिंग्स दैट यू विल हैव टू बाय डिफॉल्ट रिमेंबर। अदरवाइज मोस्टली आपका डिराइवेबल है, कोई बहुत बड़ा भारी भरकम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज इसमें यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ओके, रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक मास। तो भाई साहब साइंटिस्ट लोगों को तो इलेक्ट्रॉन का समझ में आ गया, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है विच इज द सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज part of the atom, what is it composed of? So that was the question। every nucleus is composed of particles called protons and neutrons। तो सारे न्यूक्लियस में भाई साहब आपके प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। different elements have different number of protons and neutrons in their nuclei। the protons and neutrons in most of the nuclei are bound together very tightly। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, they are bound together very tightly, बहुत टाइटली ये बाउंड होते हैं। ठीक है, जनरली न्यूक्लियर कैन बी ट्रीटेड एज, तो हम यहाँ पे जनरली न्यूक्लियर कैन बी ट्रीटेड एज सिंपल अनब्रेकेबल पार्टिकल्स। ये एक सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आप फटाफट निकाल सकते हो। आपने देखा कि भाई मेटल्स को तो, मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना और भी आसान है। इफ यू आर मेकिंग एन इंसिडेंट रे हैविंग frequency more than the threshold frequency, just by making the incident ray fall on a metal surface, you can actually cause the electrons to move out of the surface by photoelectric effect। तो इससे तो और भी मतलब इतना आसान है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, लेकिन दिक्कत है आपके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को तोड़कर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जनरली न्यूक्लियर कैन बी ट्रीटेड एज सिंपल अनब्रेकेबल पार्टिकल्स इन केमिकल रिएक्शंस और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अनब्रेकेबल पार्टिकल्स है ये। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन अ न्यूक्लियस ब्रेक्स अपार्ट और इज असेंबल्ड। तो भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर या तो टूटेगा या तो असेंबल होएगा। These reactions can release very large amounts of energy। बहुत ज्यादा एनर्जी भाई साहब ये रिलीज करेंगे। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में काफी ज्यादा एनर्जी भाई साहब रिलीज होगी। और ये तमाम जो डिस्कवरीज हुई थी, अगर आप देखोगे, ज्यादा करके हुई हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिकॉज भाई साहब साइंटिस्ट के कान पे बंदूक रखा हुआ था, कनपट्टी पे बंदूक रखा हुआ था कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स डिजाइन कीजिए, वी आर इन द नीड ऑफ द आवर। आप देखोगे हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक्चुअली हाइसेनबर्ग के ऊपर सुपारी थी, मतलब he was German scientist and the Allied powers believed that he is one person who can actually design a nuclear bomb and they actually wanted to kill him। तो काफी बड़ा नेटवर्क फैला इनको मारने के लिए, सक्सेसफुल तो नहीं हुए। लेकिन ये सारे तमाम जो आपके डिस्कवरीज हुई हैं एटम या न्यूक्लियस को लेकर, आप ज्यादा करके देखोगे उस टाइम पे, उस पीरियड में हुआ है। ठीक है, बिकॉज दे वर all countries and all scientists were desperately trying to devise a bomb which is which can cause massive destruction। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए ये वाली बात आती है, द रिएक्शंस व्हिच रिलीज वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड्स अल्फा रेट स्कैटरिंग ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो भाई साहब हमको मालूम चल गया कि एटम के सेंटर में कोई एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिवली चार्ज है और जो अल्फा रेस को भाई साहब डिफ्लेक्ट करा रही है। थोड़े बहुत अल्फा रेस भाई साहब डिफ्लेक्ट हो रहे, कुछ भाई साहब वापस आ रहे हैं, ठीक है। वी नोटिस्ड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया, द सेंटर ऑफ द एटम इज मेड अप ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी व्हिच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, when alpha ray particles bombarded a gold foil, they were scattered in different directions, which shows the entire positive charge and the mass of the atom are concentrated at the center of the atom in a very small volume which is called the nucleus. Are we clear? उधर बताइए ना मैम प्लीज। ए यार अभी ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है मैम, इतना लेट क्यों आप अलाउ कर रहे हैं? कोई क्यों आएगा इतना लेट? आप बताइए ना। हम टाइम दे देते हैं फिर भी लोग अपने टाइम पे आते हैं और फिर सारी चीजों को रुका कर इनको पेपर बांटते फिर। इससे स्टूपिड काम और क्या हो सकता है? नहीं है मेरे पास, चाहिए नहीं, आई डोंट हैव, नहीं है, उनको बाहर भेज दीजिए। ये सब नवाब की तरह लोग आते हैं क्या यहाँ पे? अभी नहीं मिल रहा है मेरे को, 5 पेपर में लाया था, नहीं मिल रहा है। सारा कार्यक्रम रोक के ये करो। मैंने तब भी पूछा, मेरे पास 5 पेपर है, कौन एब्सेंट है? नहीं मिल रहा है, कहीं है देखिए उधर, मुझे नहीं मालूम, किसी के पास कैसे रहेगा। मिला नहीं? तो कोई मेहरबानी नहीं कर रही है यहाँ पे। वो क्या नाम है वो, ये भी लेट आया क्या? किधर गया वो? इधर जो बैठा था इसको, हाँ ये वो सब 15-15 मिनट लेट आ रहे हैं। मेरे को सारा कार्यक्रम रुका के ये सब करना पड़ता है। इन लोगों को मैंने बुलाया, बराबर टाइम पे आते हैं इन लोग। कल से सीधा भेज दीजिए घर, एक दिन घर भेजेंगे सही हो जाएंगे ये। और घर में इन्फॉर्म कर दीजिए हमने घर भेजा हुआ है इनको वापस। इनके टाइम का वैल्यू नहीं, हमारे टाइम का वैल्यू है। प्रयाग और फनाल दोनों भी 15-15 मिनट लेट थे। अभी भी दिया है मैंने पेपर इनको। ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है मैम, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं पूरा ऑर्गेनाइज करके करता हूं लेकिन ये इसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब हो गया अभी। हाँ कीजिए बात। ओके, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो इनके अंदर भाई साहब आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब ये घूम रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका क्या हो जाएगा? ये भाई साहब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एटॉमिक नंबर। और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, दिस विल बी एटॉमिक मास, दिस विल बी एटॉमिक मास एंड दिस विल बी एटॉमिक नंबर, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर।
इसी को अपन बोलेंगे भाई साहब मास नंबर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। सो आपका ए क्या हो जाएगा, Z प्लस N, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर। तो आपका भाई साहब ये अल्फा रे एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है तो दे वेर स्मूथली पासिंग थ्रू, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं, अल्फा पार्टिकल्स, दे वेर स्मूथली पासिंग थ्रू एंड सम गॉट deviated because they were almost on a head-on collision with the nucleus. ठीक है, so ये deviations caused way and we structurize the formation of an atom. Okay, तो आपके एटम में भाई साहब देखो ज्यादा इसमें कोई विस्तारित नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं. आई डोंट थिंक इट विल बी अनग्रास्पेबल फॉर यू. ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. स्टिल इफ यू फील दैट an explanation is required here, feel free to approach. Nucleus is made up of neutrons and protons. पहले भी पढ़ चुके हैं भाई साहब, ये आपका सेंट्रल पार्ट है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन्स जो हैं उनका मास कितना, चार्ज वही रहेगा इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मास कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻20. तो ये आपका भाई साहब प्रोटॉन का सिंपल हो गया. न्यूट्रॉन आपका 0, 1.67 इंटू 10⁻⁻20 वही सेम देखिए मास है. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है, अगर आप देखोगे मास ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आपका ये सिंबल है. ठीक है, दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ अ न्यूट्रॉन. द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स. अभी इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि वी जनरली टेंड टू इग्नोर इट. ठीक है, द एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. The periodic table contains an average value of the atomic mass for each element based on the natural abundance of each element. Natural abundance मतलब इसका क्या मतलब है? Periodic table में natural abundance के साथ क्यों कनेक्शन है? Naturally कितना अकर करता है? अरे भाई साहब देखो periodic table क्या है, पहले हमने atomic mass से किया periodic table को, तो पहले आया भाई साहब आपके बहुत सारे डेबोनियस ट्राइड्स आए, उसके बाद भाई साहब आया आपका Newland's laws of octaves, then we had Mendeleev's periodic table and then modern periodic table finally came up. ठीक है, but during all these, ठीक है, आपका एक गलती जो प्राइमरी कर रहे थे वो था आपका एटॉमिक मास से पीरियोडिक टेबल को सजाना, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना वो एटॉमिक नंबर से बना. ठीक है, लेकिन इन सब में ये वाला मतलब क्या है भाई साहब, पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एन एवरेज वैल्यू ऑफ द एटॉमिक मास फॉर ईच एलिमेंट बेस्ड ऑन द नेचुरल अबंडेंस. जैसे क्लोरीन का आप कोई भी सैंपल लेंगे तो उसमें 3517 क्लोरीन और 3717 क्लोरीन, इनका भाई साहब परसेंटेज अलग अलग है. इसी के हिसाब से आपका क्लोरीन का एटॉमिक मास आया है 35.5. समझ में आ रहा है ये? तो इसके हिसाब से आपका भाई साहब एटॉमिक मास है. एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन द नेचुरल अबंडेंस एंड नॉट ऑन द सैंपल. समझ में आ रहा है ये कि कितना, जनरली कोई भी क्लोरीन के सैंपल में आपको ये ही एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा. अभी देखो 35.5 इज एन इरेशनल नंबर. मतलब इरेशनल कैसे कि भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर 35.5 कैसे हो सकते हैं? आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता. लेकिन यहाँ पे हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको 35.5 लाया है, क्योंकि यहाँ पे 75:25 का रेशियो है. अगर भाई साहब 99:1 का रेशियो आता तो हम फिर भी एक को इग्नोर कर सकते थे, बट 25% इज अ गुड रेशियो, वी कैन नॉट इग्नोर दैट सैंपल साइज. ठीक है, इसकी वजह से आपका ये आ रहा है. तो ईच एलिमेंट बेस्ड ऑन द नेचुरल अबंडेंस ऑफ ईच एलिमेंट. ठीक है, the value listed in the periodic table is the mass in grams of 1 mole of atoms. तो 1 mole of atoms का भाई साहब अगर आप क्लोरीन का देखेंगे, सैंपलिंग करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 35.5 आ जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है नेचुरल अबंडेंस क्यों? क्योंकि क्लोरीन में एक सैंपल 75% है, दूसरा सैंपल 25% है. ये एक ह्यूज नंबर है विच वी कैन नॉट इग्नोर. ठीक है, ऑल्दो मेनी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक फॉर्म्स, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि उनका अबंडेंस उतना ज्यादा नहीं होता है. हाइड्रोजन का जैसे ड्यूट्रियम है, ट्राइटियम है, ठीक है, कार्बन का जैसे C12 है, C14 है, बट क्लोरीन हैज अ सब्सटेंशियल नंबर. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वैल्यू पे आप अराइव हुए हैं. एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.673 into 10⁻⁻27 kg. ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, वेयर E is equal to 1.602 into 10⁻⁻, तो ये तो 1.6 into 10⁻⁻19 अपन यूज करते हैं. ठीक है, न्यूट्रॉन, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1.675 into 10⁻⁻27. अगेन दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन. अभी भाई साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो, इनके मासेस देख लो भाई साहब, ये बहुत ही कम है, 9.1 into 10⁻31 है.
ये 1.6 इंटू 10⁻⁻27 है, 67 मान लीजिए, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों के मासेस सेम है, ठीक है। इफ यू लुक इनटू इट, आपका भाई साहब एक प्रोटॉन का मास इज ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स, ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स mass of a proton is almost 1800 times the mass of an electron. Mass of a proton is almost 1800 times the mass of an electron. 1840 होता है, to be very precise. Okay, okay. तो आप भाई साहब यहाँ पे देख लो, मास, एटॉमिक मास यूनिट इसका भाई साहब बहुत कम है, इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका भी 1 एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज सब्सटेंशियली लेस, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, ठीक है। मास अभी भाई साहब ये आपका एनर्जी पर सी स्क्वायर है, तो दिस इज वेरी लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके प्रॉपर्टीज हो गए, कुछ पॉजिटिव चार्ज है इसमें, नेगेटिव चार्ज है, ओके। एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। ध्यान देने वाली बात है न्यूट्रल एटम की, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स माइनस हुए हैं जिसके वजह से उसका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हुआ है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को आप एटॉमिक नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। सो Al3 को देखकर आप नहीं बोल सकते कि भाई साहब इसका एटॉमिक नंबर 10 है, रॉन्ग हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इट हैज लॉस्ट इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो वी विल ईदर कंसिडर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंडर एनी कंडीशन, ठीक है, और कंसिडर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ Al। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? In order to maintain the electrical neutrality, the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। ये होगा ही भाई साहब, मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। While the positive charge of the nucleus is due to the protons, the mass of the nucleus is due to the protons and the neutrons। ये इंपॉर्टेंट है, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी हम ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, न्यूक्लियस के ऊपर ही बातें होंगी, ठीक है। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है एक एटम में, वो प्रोटॉन्स की वजह से है, और एटम का जो मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। मास ऑफ एन एटम इज प्राइमरली ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड द पॉजिटिव चार्ज इज प्राइमरली ड्यू टू प्रोटॉन्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, मतलब आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी सोचिए कि अगर कोई चीज 1800 गुना कम है और वैसे ही उसका मास है भाई साहब 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो क्या ही मास लेंगे हम उसका, ठीक है। इसीलिए जनरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द टोटल मास ऑफ द एटम। अदरवाइज द टोटल मास ऑफ एन एटम इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं मास ऑफ द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियॉन्स इज द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। क्लियर है? सिंपल चीजें हैं भाई साहब, ओके। तो आपका सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, ए जेड, ये तो आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ए एक्स जेड, ठीक है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर हो गया भाई साहब आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये सिंबल हो गया। एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब हो गया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को गिनती नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं है, लेकिन इतना नेग्लिजिबल होगा कि उसको लेकर कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इनटू 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, एनीवन? 1 atomic mass is 1.6 into 10⁻⁻27। क्या? तो number of neutrons plus number of protons into 1 atomic mass unit, तो atomic mass is equal to AAMU। ये आपका हो जाएगा भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसीलिए आपके एटॉमिक मास में आप इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन को पूरा पूरा नजरअंदाज कर देते हैं। यू डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। क्लियर है? ओके। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, सिंपल है भाई साहब एकदम, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे पूरा पूरा डायरेक्टली इग्नोर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस को। द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियाइड किसको बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे भाई साहब अलग अलग परिभाषाएं यूज हुई हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियाइड इज नथिंग बट न्यूक्लियाइड व्हेन एन एटम इज टॉक्ड ऑफ विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इट्स न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन, कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम इसको भाई साहब न्यूक्लियाइड बोलेंगे। इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। Thus, a nuclide is a specific nucleate of atom characterized by atomic number and mass number। तो ये हो गया भाई साहब आपका न्यूक्लियाइड, ठीक है। क्लियर है? सिंपल भाई साहब, आप न्यूक्लियस बोल लो, न्यूक्लाइड बोल लो, ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग, ओके।
एटम्स, तो आइसोटोप्स क्या है भाई साहब? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर नोन एज आइसोटोप्स। एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे थे भाई साहब, ठीक है। क्लोरीन भाई साहब आपके आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन, ये हो गया भाई साहब आपका प्रोटियम, ये हो गया आपका ड्यूट्रियम और ये हो गया आपका ट्राइटियम, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन भाई साहब आपका 17 35 Cl 35 कितना था भाई साहब? सॉरी ये 17 37 17 Cl, ये दो आपके क्लोरीन के हो गए भाई साहब। और क्या है? कार्बन 12 6 14 6, ये सब आपके आइसोटोप्स हैं, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in many different formats having the same atomic number but different mass numbers is known as isotopes, ठीक है। so isotopes की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो दे विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। atoms of the same element whose nuclei have same number of protons but different number of neutrons, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भाई साहब डिफरेंस किसका आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स का। यहाँ पे एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा है, एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा है, तो अभी अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम लें तो वो तो प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर आपका इक्वल है, मतलब आपका न्यूट्रल स्ट्रक्चर में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, तो ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे भाई साहब आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी भाई साहब, 17 है तो ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई साहब? 20। समझ में आ रहा है? 19 ना, 17 35 सॉरी, हाँ 17 ही होगा ना, 35 माइनस 17 18, 18 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली भाई साहब यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा? 6 न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे भाई साहब आपके 8 न्यूट्रॉन्स, तो सब में आपका न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा। ओके, सो हियर वी हैव प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ऑल सैंपल्स ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप, ठीक है, जहां पे भाई साहब आपका डिफरेंस है। क्लोरीन भाई साहब ये हो गया। एवरेज एटॉमिक मास, द एवरेज एटॉमिक मास भाई साहब क्या हो जाएगा? A1 into N1, A2 into N2, A3 into N3, atomic mass of the first isotope, atomic mass of the second isotope, fraction of first isotope, इसको अपन परसेंटेज भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। जैसे अगर समझ लो कोई 75% का है तो उसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 75/100, ठीक है। ले रहे फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आइसोटोप, ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब। एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? कहीं कहीं पे ये सिंधी टाइप का सवाल पूछ लेते हैं, हालांकि ये कैलकुलेशन बहुत पुराना है, इट्स नॉट समथिंग न्यू टू यू। कैसा गया प्रीलिम्स? हाँ, कैसा गया प्रीलिम्स? तुम्हारा अभी क्या क्या बाकी है? मैथ्स और मैथ्स, सिर्फ मैथ्स ही बाकी है, वेडनेसडे को है। इसको लिख लीजिए, ये फ्रैक्शन जो है N1, ये परसेंटेज फॉर्म में 75% अगर है आपका तो 75/100 लिखेंगे, वही फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा आपका। 75% ऑब्वियसली मीन 75 आउट ऑफ 100, सो इसको हम परसेंटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देखो 75% ऑफ दिस एंड 25% ऑफ दिस, ये आप बहुत पहले से करते आए भाई साहब। एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 35 इंटू 75/100, ये हो गया फ्रैक्शन। देखो इसको इसीलिए मैं परसेंटेज भी बोल रहा था, N1 को आप परसेंटेज भी बोल सकते हो, ठीक है। और 37 into 25/100, so this will give you 142/4, that is approximately 35.5, so that's the average atomic mass। यही आपका कैलकुलेशन में एप्लीकेबल होगा, हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन मौजूद हो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज as per the calculations are concerned, you will have to strictly adhere to this when you are making calculations, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। आइसोबार्स, आइसोटोन्स भाई साहब क्या हो जाएंगे? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट whose nuclei have same number of nucleons but different number of neutrons and protons। तो आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर भाई साहब सेम हो जाएगा, आपके सॉरी एटॉमिक मास सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो आपका आपका मास नंबर जो है वो सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम हो जाएंगे, नंबर ऑफ भाई साहब आपके न्यूक्लियॉन सेम हो जाएंगे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये आपके सेम हो जाएंगे भाई साहब, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके सेम हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन
कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का भी एटॉमिक मास आपका 14 है, हालांकि दोनों का एटॉमिक नंबर आपका अलग अलग है 6 एंड 7, ठीक है। सो दीज आर आइसोबार्स, ठीक है। इन द सेम वी हैव आर्गन एंड कैल्शियम, both have the same atomic mass, that is 40, however their atomic numbers are different, ठीक है। so these are isobars, same atomic mass number, which means that the number of nucleons is the same, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो आपका नंबर है दैट इज सेम, ठीक है। ओके, आइसोटोन्स क्या हो जाएंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, आइसोबार्स और आइसोटोप्स में क्या फर्क है, आइसोटोप्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे, आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। जैसे ही आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो अलग हो गया भाई साहब, तो एलिमेंट भी। आइसोटोन्स भी देखिए, दिस विल आल्सो स्टार्ट विद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर्स हैव टू बी डिफरेंट, ठीक है। जब तक कहानी आपकी एटॉमिक नंबर की सेम रहेगी तब तक आइसोटोप्स की कहानी होगी। बाकी किसी भी मुद्दे पे आपका एटॉमिक नंबर अगर सेम नहीं रहेगा तो वो आइसोबार आइसोटोन कुछ भी हो सकता है, बट नॉट आइसोटोन, ठीक है। ओके, सो मास नंबर यहाँ पे भाई साहब डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी भाई साहब आपका डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेकिन सेम है, ठीक है। सरप्राइजिंगली आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द सेम। सो लेट्स से अगर आपने लिथियम ले लिया और बेरिलियम ले लिया, हमको मालूम है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सिंपल, ठीक है। लिथियम में अगर आप आते हैं तो कितना आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा, 7 माइनस 3 दैट इज 4, और अगर आप बेरिलियम में आते हैं 8 माइनस 4 दैट इज 4, ठीक है। सो बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोबार्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और आइसोटोप्स मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ठीक है। आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। ओके, यहां से अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आपकी 12th स्टैंडर्ड की स्टडी चालू होती है, इसके पहले तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन था। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस शेप ऑफ न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल, स्फेरिकल ही होगा भाई साहब, ठीक है। डाल्टन से बोलते आए हम स्फेरिकल, तो आज तक डाल्टन की जो थियरी थी, ऑल्दो इट वाज प्राइमरी थियरी विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल। ऑल एटम्स आर बेसिकली स्फेरिकल। ओके, अगर स्फेरिकल है तो भाई साहब हमको मालूम है कि इस एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 pi r cube। जस्ट रिकॉल दिस समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन मे बी 9th और 10th स्टैंडर्ड इन मैथ्स, जहां पे आप वॉल्यूम या मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें आपको ये टॉपिक आया था, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 pi r cube, ठीक है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जितने आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे उतना ही बड़ा भाई साहब आपका साइज होता जाएगा, द साइज ऑफ द एटम विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द एटम विल इंक्रीज विद द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। 4/3 pi r cube will be actually proportional to the number of nucleons। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब एटॉमिक मास बोलो या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप बोलेंगे भाई साहब क्लोरीन का आप बोल रहे हो 35.5, नहीं, हमने मान लिया उसको, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम जब 75 और 25 का रेशियो देखते हैं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू कंसीडर 35.5। हाउएवर प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। या तो 37 होगा या तो 35 होगा, किसी भी एक एटम को उठाओगे तो, ठीक है। लेकिन यहां पे ये जो A है देयर इज एटॉमिक मास नंबर नहीं है, ये एटॉमिक मास नंबर देखो, एक तरफ से तो एटॉमिक मास नंबर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, और दूसरी तरफ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। So it is on one side with its unit representing the mass of the atom, and on the other end it is representing a number as well, ठीक है, एक particular number, the number of protons and neutrons, the number of protons and neutrons, that is what it is actually representing। इसीलिए जितना आपका ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितना आपका बढ़ेंगे भाई साहब, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एकदम फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं मतलब देयर इज हार्डली एनी स्कोप फॉर वर्क। तो भाई साहब जितना ज्यादा आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एज एंड व्हेन दे इंक्रीज, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस देन ऑब्वियसली द एटॉमिक साइज विल आल्सो इंक्रीज। एटॉमिक साइज का वॉल्यूम जो है वो 4/3 pi r cube सिंपल बाय स्फीयर के कॉन्सेप्ट से आएगा, और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A के। A इज द एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ, यहाँ पे एटॉमिक मास के फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो आप ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास को हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दो तरीके से यूज किया है इस चैप्टर में। कहीं पे तो आपका मास से कंसर्न है, मास ऑफ द एटम, मास ऑफ एटम, और कहीं पे हमने उसको तोड़कर भाई साहब क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का है। so that is what it is. So 4 by 3 pi r cube, will this be directly proportional to this? Okay, so तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला तो भाई साहब आपका कांस्टेंट हो गया, इसको उड़ा दो, तो इसका मतलब r cube is directly proportional to a, ठीक है। so r is directly proportional to a raised to 1 by 3। तो जो भी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, एक स्केल लेके तलवारबाजी किए जा रहा तब से भाई साहब, कितना ही तूने कॉलम बना लिया होगा पता नहीं क्या हो गया भाई। খালি হয়ে যাবে। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, एक रेज टू 1 बाई 3, ठीक है, 1/3 ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ ए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हमने लिखा यहाँ पे आर बाई आर नॉट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए बाई ए नॉट रेज टू 1/3, है कि नहीं? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर बाई आर नॉट विल बी इक्वल टू ए। तो अगर हमने यहाँ पे भाई साहब आर इज इक्वल टू आर नॉट, देखो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है ना, तो ये तो आपकी प्रोपोर्शनैलिटी हो गई, कांस्टेंट लगाएंगे तो आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3, ठीक है, ये हो गया सिंपल। यहाँ पे आपने कांस्टेंट लगा दिया प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर। आर नॉट इज फर्मी कांस्टेंट, ठीक है, फर्मी कांस्टेंट इज, यहां से आपका फर्मी मीटर आया था, तो हम जनरली बोलते हैं ना 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, ठीक है। आर नॉट की वैल्यू क्या है, 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, इसको लिख लीजिए भाई साहब 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी मींस 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 मीटर्स। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इन फर्मी भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आर की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू आ गई 1.2 फर्मी, तो ये हो गया ए रेज टू 1/3 फर्मी मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3, आर नॉट की वैल्यू हो गई 1.2 फर्मी मीटर, दैट इज 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 15, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, ठीक है। क्यों 10 रेज टू माइनस 15 मीटर? अभी अभी आपने देखा भाई साहब आर जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो कितना हो जाएगा, आर नॉट ए 1/3, और इस आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 इंटू ए रेज टू 1/3, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ये तो रेडियस हो गया, साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब ना, ठीक है। तो आर क्यूब करोगे तो भाई साहब इसका भी क्यूब होगा, ठीक है। सो दैट इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी मीटर्स, 10 रेज टू माइनस 15 मीटर्स। Size of the nucleus was estimated in terms of distance of closest approach of an alpha particle in Rutherford's alpha ray scattering experiment। हमने distance of closest approach निकाला था, ठीक है। If an alpha particle with an initial kinetic energy approaches a target of atomic number z, its distance of closest approach is d, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze का स्क्वायर बाई डी। कैसे आया भाई साहब, कैसे आया, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, Z इंटू ई, कैसे, हाँ पॉजिटिव, कैसे आया जेडी, न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है भाई साहब, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, राइट नंदिनी, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, देखो देखो भाई साहब, राम कहानी खत्म, उसके बाद बोलते राम सीता की मौसी। आप अल्फा पार्टिकल अभी नहीं पढ़ी हो भाई साहब, 9-10 में पढ़ा है, इरशाद महफिल जम चुकी है भाई साहब। हाँ जी, सर दे मारना, अल्फा पार्टिकल का भाई साहब नहीं पता, अल्फा पार्टिकल है क्या, ये लोग बता देंगे भाई साहब, तुम लोग को किसी को मालूम है क्या, 9th वाले? नहीं सब
अरे भाई साहब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। तो हीलियम के पास एक गरीब सा एटम है भाई साहब हीलियम, जिसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको निकाल दोगे तो बचेंगे क्या, 2 प्रोटॉन्स। अगर 2 प्रोटॉन्स बचते हैं तो इसका मतलब 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अल्फा पार्टिकल। कहा भाई साहब, तो 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाएगा तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 2e। इस एटम को जो अप्रोच किया जा रहा है, समझ लो गोल्ड लगाया है हमने, एल्यूमिनियम लगा सकते हैं, कोई भी गोल्ड फॉयल अगर हमने लगाया जो रदरफोर्ड ने लिया था, उसका एक एक एटम के अंदर कितने आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, Ze, जो उसका एटॉमिक नंबर इंटू ई। ठीक है, अभी भाई साहब ये ट्र आ रहा है भाई साहब, अभी ऑब्वियसली रिपल्शन बढ़ता जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल स्टॉप एंड विल रीबाउंड बैक। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या गया है भाई साहब, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विच इज फोर्सिंग दिस अल्फा पार्टिकल टू गो बैक। ठीक है, फ्रॉम द सेम वे इट हैज कम, इट इज फोर्सिंग इट टू, ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लेट्स से दिस इज डी। सो व्हाट विल बी द, ये भाई साहब फटाफट होने चाहिए ये सब, आप लोग बहुत सुस्तर फेज में हैं भाई साहब, थोड़ा निकलिए इस फेज से। दीज कैलकुलेशन शुड बी रैपिड फास्ट गोइंग इन योर ब्रेन्स। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, Ze, तो आपका भाई साहब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पता नहीं किस जमाने से इस फॉर्मूले को आप पढ़ते आ रहे हैं, ये कूलम्स लॉ है, नथिंग मोर देन दैट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया Q1 की वैल्यू, ये हो गया Ze, और ये भाई साहब आपका कितना हो गया, अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा, 2e। 2e के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई साहब अल्फा पार्टिकल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप निकाल दोगे, बचेंगे 2 प्रोटॉन्स, तो चार्ज हो जाएगा 2e। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका 2e बाई डी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया भाई साहब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze का स्क्वायर, 2Ze का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे डी स्क्वायर का डी क्यों बन गया, डी स्क्वायर का डी क्यों बन गया, हाय, डी स्क्वायर का डी क्यों बन गया, अरे भाई साहब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, और एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो आपका ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब डी का डिस्टेंस, तो इंटू डी, तो ये भाई साहब हो गई आपकी एनर्जी। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो क्रिएट हुआ है, और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को जीरो बना रहा है। मतलब ये आ रहा था भाई साहब स्पीड से, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन एन अल्फा पार्टिकल विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से के ई या ई, ठीक है, approaches a target of atomic number, if the distance of closest approach is d, at this point what will happen, the electrostatic force of attraction which has a potential energy of its own will make the kinetic energy zero। ठीक है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये, तो काइनेटिक एनर्जी विल, आपने देखा है ना किसी भी मोशन में टोटल एनर्जी जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एंटायरली टेक्स ओवर। तो आपका यहाँ पे एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या अपन बोल सकते हैं एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze का स्क्वायर बाई डी। All these things have to be understood. Where is this 2 coming from? That is coming from the 2 units of positive charge that an alpha particle carries. ठीक है, ये e स्क्वायर कहां से आया, Q1 Q2 करेंगे तो Ze इंटू ई के ये e स्क्वायर आया, और आपका ये d स्क्वायर का d कैसे हो गया, क्योंकि भाई साहब आपका एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एक d भाई साहब कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सब फास्ट होना चाहिए भाई साहब, there is no rocket science out here. The radius r of the nucleus of A is given by, radius कितना हो जाएगा, अभी तो पढ़ा, r is equal to r naught into a raised to 1/3, 1.2 into 1.2 into 10 raised to minus 15, ये पास कर दूंगा, 1.2 into 1.2 लिखते हैं हम जनरली, 1.1 क्यों लिख दिया भाई साहब यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे r is equal to 1.2 into 10 raised to minus 15 है ये। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस इज, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, a raised to 2/3, कैसे सरफेस एरिया, अरे बोलो ना भाई साहब कैसे होगा ये, सरफेस एरिया एक स्फीयर का कितना होता है, ओके 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या निकाली हो, क्या निकाला है आपने भाई साहब, आर ए इंटू ए रेस टू 1/3, तो आप भाई साहब सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4 पाई ये पूरा ए रेस टू 2/3 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए रेस टू 2/3, प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 2/3, नॉट इक्वल टू। ठीक है, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 2/3। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा ना भाई साहब, ए रेस टू 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। द वॉल्यूम वी ऑफ द
The volume V of the nucleus is directly proportional to the mass number. That is, V is directly proportional to R cube. R cube मतलब, अरे भाई साहब स्फीयर क्या है, देखो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, समझ में आता है भाई साहब? ये तो स्फीयर का हो गया। और आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है भाई साहब? आर इज इक्वल टू आर नॉट ए का 1/3। तो आप इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर नॉट ए रेस टू 1/3 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर नॉट का स्क्वायर ए रेस टू 2/3। तो सरफेस एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 है, पाई की वैल्यू 3.14 है और ये 4 हो गया। तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 2/3। इसी तरह से वॉल्यूम भी हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है भाई साहब आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपका भाई साहब आर क्या है, इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3। तो आर क्यूब की वैल्यू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3 का क्यूब। तो ये हो गया आर क्यूब इंटू ए, समझ में आ रहा, आर नॉट क्यूब इंटू ए, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका आर क्यूब का वैल्यू। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई साहब वॉल्यूम में, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। तो आप भाई साहब इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मेकिंग सेंस पीपलम? इज इट मेकिंग सेंस? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए का। तो अपन ने क्या देखा भाई साहब, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 2/3 एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 1/3। क्या ये समझ में आ रहा है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 1/3, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 2/3। अरे ये लोग करके देंगे 2 और 1, करके देंगे, इतना तो बनता है उनका, कर दिया देखो, ठीक है। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके। अरे यार ये एकदम भाई साहब दिमाग के नस तक जाता है ये आवाज। ओके, न्यूक्लियर डेंसिटी सिंस न्यूक्लियस इज, जब आप लोग पेरेंट्स हो जाएं प्लीज ये मत करना यार, ये ऐसे जूते मत खरीदना यार प्लीज। दुनिया में इतना मतलब आवाज, इतना इरिटेटिंग कोई आवाज नहीं होगा। और वो बच्चा भी क्या सोचता होगा मुझे मालूम नहीं, मेरे जूते में चाचू आवाज आ रहा है, दूसरे को जूते में नहीं आ रहा है, इतना ही सोच रहा है वो। और इनको लग रहा है कि भाई साहब वो खुश हो रहा है, वो खुश नहीं हो रहा है, दूसरे के जूते में नहीं आ रहा है, मेरे जूते में आवाज आ रहा है, वो कंफ्यूज है। और बचपन से ही हम इस कंफ्यूजन में बच्चे को परवरिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी सिंस न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी, कौन सा मधुर स्वर निकल रहा है उससे, बताओ भाई साहब? चैट चू क्या है ये? इज इट प्लीजिंग टू द ईयर्स? हाउ कैन इट बी प्लीजिंग टू द चाइल्ड? वो उसके लिए कैसे प्लीजिंग हो सकता है जब हमारे लिए इतना इरिटेटिंग है? सिंस न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी इन स्फेरिकल शेप, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। क्या ये समझ में आ रहा है? आर क्यूब की वैल्यू हो गई भाई साहब आर नॉट क्यूब। जाइए जाइए, अलविदा, हो गया। हाँ मैम ने कहा तुम उधर ही दे दो ना, उधर ही 1 2 कर लो भाई साहब, वो इधर दे दो। ओके, सिंस न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी इन स्फेरिकल शेप, तो वॉल्यूम कितना हो गया भाई साहब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। मास ऑफ द न्यूक्लियस ए इज इंटू एएमयू, ए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू, अभी देखो ये वन, इसको नोट कर लो भाई साहब, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते और कभी कभी आपके उसमें ये दिया नहीं रहता है, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज टू -27 kg, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब। आओ ठाकुर आओ, तुम्हारा इंतजार है, आओ आओ। ये एक और ठाकुर आ गए। मार्टी में तुम तीनों ही हो क्या? हाँ, कौन है? मम्मी भी है? पता नहीं तुमको कैसे पता नहीं भाई, हमने मैसेज भेज दिया है और कल ही भेज दिया है। तुमको मराठी है या नहीं है? है, ग्रेडेड है या प्रॉपर है? ग्रेडेड है। अब तुम्हारे ऊपर है भाई साहब, मम्मी कुछ नहीं बोल सकता। तुम्हारा हिंदी क्लास था आज, नहीं आई?
पेपर कहाँ गायब हो गए? दिया ना चैप्टर उधर, उधर दिया हुआ है। हाँ जाने दो, जिसको जाना है। ए बेशरम, कभी तो टाइम पे जा। ओके, सिंस न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी इन स्फेरिकल शेप, तो वॉल्यूम को अपन ये मान सकते हैं। और आर क्या हो जाएगा भाई साहब? आर नॉट इंटू ए रेस टू, तो आर जो है वो क्या हो जाएगा? आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3। ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन। इसको अगर हम क्यूब करेंगे तो आर नॉट का ही क्यूब आएगा, और आर नॉट क्या है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, इनका हो गया तो जाने दीजिए। हाँ नहीं, जाने जा, जा, भीड़ मत बढ़ा, जा जा जा, अयासी कर जीवन में जाकर जा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके ओके ओके। तो अभी आप देखो यहाँ पे मास की वैल्यू क्या हो गई? मास की वैल्यू हो गई एटॉमिक मास, एएमयू में है देखो। एटॉमिक मास मतलब आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटू, अभी वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी है इसको लिख लीजिएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मास भाई साहब कितना हो जाएगा? ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और आपने देखा कि भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास लगभग सेम है, ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, हम यहां पे मान सकते हैं एक प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, विच इज 1 AMU, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। am I making sense people? हम क्लियर है भाई साहब? ओके, तो ये हो गया आपका मास अपॉन वॉल्यूम। डालो यहाँ पे 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। एक्चुअली में वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह पे आप क्या लिखोगे? आर नॉट क्यूब बाई ए। आपका भाई साहब आर होता है क्या? इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3। ठीक है, तो अगर हमने आर क्यूब कर डाला तो आर क्यूब करेंगे तो भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ठीक है, मेकिंग सेंस पीपल? हम तो यहाँ पे आपका ए और ये वाला ए भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियरम 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 भाई साहब। तो यहाँ पे कितना हो गया? दिस विल बी 2.67। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया आपका 2.67 इंटू डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारे आपके कांस्टेंट्स आ गए। जो चीज आपका वेरिएबल था वो रहा ही नहीं। ठीक है, ये आपका वेरिएबल था क्योंकि ये हर एटम के साथ चेंज होगा, लेकिन ये और ये तो कैंसिल हो गया भाई साहब। अभी ऊपर बचा आपका एएमयू का कांस्टेंट, और नीचे क्या बचा? 4/3 पाई और आर नॉट, तो भाई साहब आपका कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 है। तो ये तो सारे आपके कांस्टेंट हो गए, इसीलिए डेंसिटी किसी भी एटम का इतना ही आएगा। Okay, 2.67 into 10 raised to 17 kg per meter cubic. Please make a note of this number. So density of the nucleus is independent of mass number. किसी भी न्यूक्लियस का डेंसिटी उसके मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है। क्या तकलीफ है लाइफ में? पूछिए ना, क्या तकलीफ है? टेम्परेचर है क्या? चेक करो भाई साहब। ठीक है सब? ओके, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम फॉर ऑल एटम्स। कोई भी एटम रहने दो, उसका डेंसिटी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि मास नंबर पे इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम फॉर ऑल एटम्स। और इसका कंसेप्चुअली आप कैसे इसको समझा सकते हैं बताइए?
कि कैसे ऐसे हो सकता है, क्या सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? चलिए मैथमेटिकली तो हमने समझ लिया इसको, ठीक है, लेकिन क्या सब में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम है? तो फिर डेंसिटी कैसे सेम होगी? ये तो मैथमेटिक है, चलो भाई साहब आपने ऐसे ऐसे किया, आर क्यू कर दिया तो ये आपका ही आ गया, बट हाउ विल यू have a conceptual base on this concept that irrespective of whatever is the atomic mass of an element, the density of nucleus is going to be the same. हमने हाँ, हाँ नहीं, फिर तुम मैथ्स में जा रही हो, मैं मैथ्स में नहीं जा रहा हूँ, मैथ्स में तो प्रूव कर देंगे हम, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है कि हाँ ये कट जाएगा तो इसे आ जाएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देखो सिंपल है, आपके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वॉल्यूम भी तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम उसी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता जा रहा है जिस प्रोपोर्शन से आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, वॉइड का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर, तो यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन में आप जिस प्रोपोर्शन से आपका मास बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन से आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंड दैट्स द रीजन दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इन केस ऑफ एटम्स मास एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? है भाई साहब, ठीक है, अगर हमने इसको ऐसा कर दिया, ये अगर कांस्टेंट है तो मास इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ए, हम लिख सकते हैं भाई साहब, सॉरी वॉल्यूम, ठीक है, मास इज, तो मास आपका वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जितना आपका मास बढ़ रहा है उतना ही आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, बिकॉज ये अगर कंसेप्चुअली अगर आप देखोगे, वैसे मैथमेटिकली तो ये प्रूव होता ही है, बट कंसेप्चुअली ऑल्सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे बराबर उसी हिसाब से आपका वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा, ठीक है, इसीलिए आप देखोगे जितने भी डायग्राम्स है उसमें स्फेरिकल नहीं, एक्चुअल डायग्राम्स अगर आप देखोगे ना एटम्स के, उसमें आपका ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये जो आपके न्यूक्लियसेस हैं, देखो इसके पहले भी हमने डायग्राम देखा, तो ऐसा एक क्लस्टर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसके बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो ऐसे न्यूक्लियस को दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये है, ठीक है, तो दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, आर वी गेटिंग दिस, ठीक है, ओके ओके ओके, सो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम फॉर ऑल एटम्स, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10 रेज टू 14 ग्राम और 10 रेज टू 17 ग्राम, सॉरी केजी पर मीटर क्यूबिक, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, 2.67 इंटू 10 रेज टू 17, और ये सबके लिए सेम होगा irrespective of the size of the atom and the number of protons and neutrons it contains, this density is going to be the same for all. Are we clear? इसका क्या कहते हैं, भौमिक का ग्रेडेड मराठी है या प्रॉपर मराठी है? वो नहीं पता है तुमको, मतलब पता क्या है, 3 साल से उसके साथ पढ़ रहे हो, मालूम ही नहीं है तुमको। पिन खत्म। एक और चैप्टर दिख रहा है क्या यहाँ पे? कहीं तो था यार, हाँ ये, अरे वो बस रोज आते हैं देखते रहते हैं, ठीक है, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, ओके ओके ओके, न्यूक्लियर डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड बाउंड्री, तो न्यूक्लियस का कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, और इसी वजह से भाई साहब आपका मास और वॉल्यूम सेम रहता है, तो यहाँ पे अगर एक न्यूक्लियस एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ऐड होता रहता है तो इट्स लाइक एक ऐसा छत्ता बनता जाता है भाई साहब, ठीक है, हम इसको एक स्फेरिकल शेप मान लेते हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट सेंस में स्फेरिकल शेप नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट सेंस में आपका स्फेरिकल शेप नहीं है, एक साथ वहीं पे रख दो ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे जैसे क्लस्टर बनता जाएगा वैसे वैसे भाई साहब आपका न्यूक्लियस बनता जाएगा, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर पीपल, हम समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। सो अगर आप देखोगे डेंसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया भाई साहब आपका डेंसिटी, और ये हो गया भाई साहब आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसे जैसे भाई साहब आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ता जाएगा, ठीक है, डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, सो दिस इज डेंसिटी एज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज आर, ठीक है, क्या चाहिए, दिया है ना वहां पे, नहीं खत्म हो गया क्या?
देखो देखो देखो, ये हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं ना। हिंदुस्तान के अंदर ही पाकिस्तान बन रहा है। ओए! अरे देखो, ऑल ओके, आराम से। हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, एटॉमिक मास यूनिट, द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एएमयू, और 1 एएमयू की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 केजी। ठीक है, 1 एएमयू, ये भाई साहब मेरे को मतलब 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम। ठीक है, एक्चुअली में है क्या, देखो पहले हम अपन हाइड्रोजन एटम को रखते थे। ठीक है, जैसे समझ लो तराजू में किसी चीज को भी अगर आप वे कर रहे होगे, समझ लो आपने यहाँ पे 1 केजी शक्कर रखा है और यहाँ पे भाई साहब 1 केजी लोहे का बट्टा रखा है। ठीक है, तराजू आपने देखा रहेगा। ठीक है, द प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, अभी तो डिजिटलाइज हो गया है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, अब भी किसी दुकान में होता रहेगा। तो यहाँ पे 1 केजी का आपने बट्टा रखा है और यहाँ पे 1 केजी शक्कर रखा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि 1 केजी का शक्कर कैसे है? हाउ इज इट 1 केजी ऑफ शुगर? सो कंपैरेटिवली क्या है, दिस मास ऑफ शुगर जो आपने यहां पे लिया है, दिस मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू 1 केजी ऑफ आयरन। यही है ना भाई? आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? आयरन के साथ कंपेयर करें तो दिस शुगर कंपैरेटिवली इज इक्वल टू 1 केजी ऑफ आयरन। ठीक है, इसी तरह से हम कार्बन को रखते हैं भाई साहब। ठीक है, तो अगर हमने पहले हाइड्रोजन को रखा था एक्चुअली, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 था। ठीक है, अभी हमने कार्बन को रखा है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो अगर समझ लो कोई ऐसा एलिमेंट आया, तो हमको पहले इस 12 को 1 करना है, इस 12 को 1 करना है, तभी हम बोलेंगे। तो इस 12 को अपन 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 एएमयू। और समझ लो अभी आपके पास ऐसे क्लोरीन 35 है। ठीक है, तो अपन क्या आएगा भाई साहब? 35 एएमयू। तो अभी क्लोरीन का एटॉमिक मास लेट से 35 अगर हमने लिया है, तो हम क्या बोलेंगे? द मास ऑफ क्लोरीन इज 35 टाइम्स ऑफ 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, the mass of chlorine is 35 times of 1/12 of the mass of a carbon atom. So 1 AMU is equal to 1/12 the mass of a carbon atom. ठीक है, और 1 AMU की वैल्यू बिल्कुल ये है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। मासेस ऑफ सम एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मास ऑफ अ प्रोटॉन भाई साहब कितना है? 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ अ न्यूट्रॉन कितना है? 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये कौन सा है वैसा? 12 है। सो मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.0073। अगर आप देखोगे इसके कंपैरिजन में, देखो इसका 1 है और यहाँ पे कितना है? 0.005। इसीलिए भाई साहब हम इलेक्ट्रॉन के मास को पूरा पूरा इग्नोर कर देते हैं। इट्स वेरी वेरी लेस। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जब भी हम किसी एटॉमिक मास की बात करते हैं, वी आर प्राइमरली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ओके। 1 AMU is close to the mass of hydrogen atom। ये आपका 1 AMU is close to the mass of an hydrogen atom। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में भाई साहब आपका एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वही सेम चीज है। देखो A इंटू 1 AMU। ठीक है, A यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट अपॉन वॉल्यूम। तो A इंटू AMU अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ए इंटू ए एम यू अपॉन, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? आर नॉट इंटू, ये आर नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, 4/3 आर नॉट, और ये हो गया ए रेज टू 1/3 इसका क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखो दिस विल बी डेंसिटी, दैट इज ए इंटू ए एम यू, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट 4/3 पाई। ठीक है, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 1.2। ठीक है, ये भी आपका फर्मी मीटर में ही है 1.2, और ये हो गया आपका क्यूब में, और ये हो गया आपका ए। तो ये ए और ये ए भाई साहब कैंसिल हो गया। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 2 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर। इसके पहले क्या नोट किया था? 2.17 कुछ था ना? कितना था?
ठीक है, तो दैट इज हाउ मच द एंड दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर ऑल एटम्स, ठीक है, सारे एटम्स के लिए सेम होगा, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक साइज, ठीक है, आपका वैसा इस पे इंडिपेंडेंट होगा ए से। ओके, एटॉमिक मास यूनिट, द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU is equal to 1 by 12 the mass of a carbon atom. 1 AMU is equal to 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. Masses of some atomic particles. So mass of proton is equal to 1.0073. Okay. Mass of a neutron is equal to this. Mass of an electron is this much. So 1 AMU is close to the mass of a hydrogen atom. A nucleus consists of. Okay, bhai sahab, sawal hai, sawal. Option B, protons and neutrons. A nucleus consists of protons and neutrons together known as nucleons. Density of the nucleus is आदित्य जल्दी अभी तो पढ़ा, अच्छा जी पढ़ के बताना पड़ेगा इतना, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इट इज जनरली 2 into 10 raised to 17 kg per meter cubic for all atoms irrespective of whatever atomic mass they are having, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज, ये फिर से आ गया भाई साहब, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी, अरे ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये मजाक हो रहा है कुछ, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, चलिए ओके। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये हो गया आपका E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 by 12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम, क्योंकि आपके कार्बन एटम को हमें 1 AMU करना है, इसीलिए हमको जबरदस्ती इसको 1 by 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी आपका ये हो गया भाई साहब, ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस आई एम सॉरी, और आपका भाई साहब आर नॉट की वैल्यू 1.2 into 10 raised to minus 15 मीटर्स, हम इसको 1.2 फर्मी मीटर भी लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस विल बी दिस मच, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, वेटेड एवरेज ऑफ द masses ऑफ ऑल आइसोटोप्स। और ये कैसे निकालेंगे आप भाई साहब, एवरेज विल बी इक्वल टू, भाई साहब बोलिए ना बोलिए, A1 N1 प्लस A2 N2, ऐसा करते करते भाई साहब AN तक, जहां पे n इज बेसिकली अ फ्रैक्शन और परसेंटेज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओके ओके ओके, सो जैसे देखिए यहाँ पे टेकिंग 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, देखो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1.67 into 10 raised to minus 27 kg, ये है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको हम भाई साहब यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, टेकिंग 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दिस मच, ये कैसे आया रहेगा, आइंस्टाइन के रिलेशनशिप से, E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, तो m की वैल्यू अगर 1.67 into 10 raised to minus 27 है, इंटू अगर c से हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 into 10 raised to 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो आपको भाई साहब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। और इसको आपको किससे डिवाइड करना है, इन ऑर्डर टू बेसिकली डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 AMU को, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, 1 AMU की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 1 AMU की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ओके, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई साहब, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मतलब क्या हो जाएगा, 931 into 10 raised to 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 into 10 raised to minus 19, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 931 into 1.6 into 10 raised to minus 13 joules। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, ओके ओके। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस में भाई साहब E का वैल्यू mc स्क्वायर होता है, या m की वैल्यू हो जाएगी E by c का स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जूल्स में निकाली आपने इतनी, और भाई साहब आपका तो यहाँ पे E इज इक्वल टू, तो आपका 1 AMU इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 AMU अपॉन c स्क्वायर, एनर्जी ऑफ 1 AMU अपॉन c स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1.657, ये जो आपका आया है 1.667 जो आप लिखते हैं ये यहां से आया है, ठीक है, ओके। तो मास ऑफ अ कार्बन एटम, कैलकुलेट द मास ऑफ अ कार्बन एटम, तो मास ऑफ अ कार्बन एटम आपका 12 AMU है, तो 12 इंटू, एक्चुअली में आप सीधा सीधा 12 AMU है तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 raised to minus 27 kg लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि कहां से ला रहे हैं आप, ठीक है, 931 वाले इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप इसको ला रहे हैं। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से आपने 1 AMU की वैल्यू निकाली, उस 1 AMU को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन का एटॉमिक मास आ जाएगा, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को आपने जूल्स में कन्वर्ट किया, कैसे भाई साहब,
इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मेगा है तो 10⁶। तो 931 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल्स हो गया, ठीक है। 931 इंटू 10⁶, तो ये आपका भाई साहब जूल्स में आ गया, तो ये आ गया आपका एनर्जी। अभी आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस अगर आप लेंगे तो E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो एनर्जी आपने निकाली है एक एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी है, तो हम यहाँ पे मास को क्या लिख सकते हैं, E बाई सी का स्क्वायर। एक एटॉमिक मास यूनिट का भाई साहब मास कितना हो जाएगा, एनर्जी दैट इज 931 इंटू दिस अपॉन सी का स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जितना भी आंसर आएगा दैट वुड बी द 1.657 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। तो मास ऑफ द कार्बन एटम आपका कितना हो जाएगा 1.988 इंटू 10⁻⁻26 kg। क्लियर है, आर वी क्लियर? द नेचुरल बोरॉन इज कंपोज्ड ऑफ टू आइसोटोप्स, ठीक है। बोरॉन जो है तो दो आइसोटोप से बना है, 10-5 एंड 11-5। आइसोटोप क्यों बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट, ठीक है। ओके, द टू आइसोटोप्स हैव मासेस दिस मच एंड दिस मच रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। तो भाई साहब आपका रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप, इफ द नेचुरल बोरॉन एटॉमिक मास इज दिस मच, तो एटॉमिक मास कैसे आ रहेगा, 10.81 इज इक्वल टू A1N1 प्लस A2N2, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट से हमने एक का मान लिया A1, A1 मतलब है आपका भाई साहब 10, है ना, एटॉमिक मास 10 है, और लेट से हमने इसका मान लिया X अबंडेंस, ठीक है। तो दूसरे का भाई साहब कितना हो जाएगा 11 इंटू कितना हो जाएगा बोलो 100 माइनस एक्स। अगर इसको मैंने x परसेंटेज माना तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 100 माइनस एक्स, ठीक है, 100 माइनस एक्स, ठीक है। इसका अपॉन 100 फ्रैक्शन में लेना है भाई साहब, n1 मतलब आपका फ्रैक्शन है और ये अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू 10.81। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। फटाफट से करते हैं इसको, देखो 10.81 इज इक्वल टू 10x प्लस 11 इंटू, तो ये हो गया आपका 1100 माइनस 11x अपॉन आपका हो जाएगा 100, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 1100 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 10.81। ये आपका एवरेज एटॉमिक मास आया है, ठीक है। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1081 इज इक्वल टू 1100 माइनस x, इस x को इधर ले लो भाई साहब, 1100 माइनस 1081 कितना आ रहा है भाई साहब, ये 9 प्लस 1 10, 9 से 8 गया 1, 19 ही आएगा ना, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 9, कितनी आएगी ना भाई साहब, x की वैल्यू हो गई 19। 19.78 कहां से आ गया भाई साहब, अच्छा 1.003 लिया हुआ है, ओ बाबा रे, क्यों ऐसा किया, फिर ये क्यों देने का मतलब था भाई साहब, हम तो ये 10 और 11 मान के चल रहे थे। अच्छा जी, ये 10 और 11 नहीं है, ये 10 और 11 है 10.003 और 11.009, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10.003 और यहाँ पे 11.009 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब, दिस विल बी 10.81 इज इक्वल टू, ये 10 नहीं है, ये हो गया आपका 10.003 इंटू एक्स बाई 100, ठीक है, प्लस आपका हो गया भाई साहब 11.009 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी 10.003 एक्स प्लस 1100.9 माइनस 11.009 एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 10.81, ठीक है। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1081 इज इक्वल टू, इसको माइनस करो भाई साहब, कितना आ जाएगा ये 9 से 3 गया आपका 6001 1.006 और ये हो गया आपका 1100.9 अपॉन 100, अच्छा 100 से तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब, दिस 1.006 तो यहाँ पे आ गया ए, अच्छा हाँ ये अभी माइनस होगा ना इधर, तो दिस विल बी, ये आपका x में आया, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस में है, तो आपका 1.006 विल बी इक्वल टू 1100.9 माइनस 1081, ठीक है। तो यहाँ से 9 से 9 गया और यहाँ पे 9 प्लस 1 10, 9, ठीक है, 99 19.9 हो जाएगा ये 19.9, दिस विल बी 19.9 और यहाँ पे हो गया आपका 1.006 x,
x is equal to 19.9 upon 1.006, so that is going to be 19.78, ठीक है। और फिर इसका दूसरे वाले का परसेंटेज हम 100 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। Assuming that protons and neutrons have equal masses, calculate how many times nuclear matter is denser than water, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अगर इक्वल मासेस है, ये दोनों तब से ना कुछ पका रहे हैं उधर, अलग अलग, इधर 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 इधर। तो हाँ, तो शांति, इसके बाद क्रांति आएगी पढ़ाई में, ओके। अज्यूमिंग दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव इक्वल मासेस, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इक्वल मासेस है, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर मैटर इज डेंसर देन वाटर, ठीक है। आपका भाई साहब न्यूक्लियर रेडियस दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपको 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 ए रेज टू 1/3, एक्चुअली कौन सा फॉर्मेट है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3, ठीक है। एंड मास ऑफ अ न्यूक्लियन इज, आपका भाई साहब मास ऑफ अ न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। दिस मास इज इक्वल टू आपका 1 AMU, जिसको हम बोलते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 kg, ठीक है। ओके, सो आर की वैल्यू दी हुई है भाई साहब आपको, ठीक है। मास ऑफ अ न्यूक्लियन आपको दिया हुआ है, न्यूक्लियर मास कितना हो जाएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट इनटू, देखो न्यूक्लियर मास कितना हो जाएगा, न्यूक्लियर मास विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास AMU, है कि नहीं, एटॉमिक मास इनटू AMU। एटॉमिक मास भाई साहब आपका कितना है मालूम नहीं, AMU की वैल्यू हमको मालूम है 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 kg, ठीक है। ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका न्यूक्लियर वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, कर लो भाई साहब यहाँ पे 10 मीटर क्यूब, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद सिर्फ दिखाना है इसको, ये वैल्यू दिमाग में रखना है, 2.2 और 2.3 ठूस कर चले आएंगे आप 10 रेज टू 17 kg पर, 2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखिए ये, क्योंकि आप कैसा भी करके करोगे यही आंसर आएगा, यू आर गोइंग टू गेट द सेम डैम आंसर, ठीक है। सो ये आपको सिर्फ दिखाना है, करना नहीं है, ठीक है, इस प्रोसेस को आपको दिखाना है, ठीक है। न्यूक्लियस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जैसे हमने डिराइव किया है, और हर एक एटम का भाई साहब सेम ही होगा, सो दिस विल बी 2 इंटू 10 रेज टू 17 kg पर मीटर क्यूब भी लिख दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू डिस्प्यूट इट। 2 इंटू 10 रेज टू 17 kg पर मीटर, इसको याद रखना है थोड़ा सा, इस ऑर्डर को याद रखना है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, दिस इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल एटम्स, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। आर वी क्लियर, क्लियर, ओके। अभी डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इतना तो भाई साहब आपका बनता है, जो आपको दिया हुआ था उसमें से आपने दिखाया कि कितने मेहनत से आपने निकाला, कि ये हो गया आपका 2 इंटू 10 रेज टू 17 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। ये सब आपको करतब दिखाना पड़ेगा एंड फाइनली इस आंसर पे लाना पड़ेगा, डोंट बॉदर अबाउट सॉल्विंग दिस, ना एग्जामिनेशन की घंटी बज जाएगी, ठीक है। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर हमको मालूम है क्या है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, जिसको अपन 1000 kg पर मीटर क्यूबिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इतना है। अगर हमको यहाँ पे पूछा है गिवन द न्यूक्लियर रेडियस इज गिवन बाय, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर मैटर इज डेंसर देन वाटर, तो न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी कितनी है, 2 इंटू 10 रेज टू 17 kg पर मीटर क्यूबिक, ये हो गया न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी। सवाल को समझो, ये हो गया न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी, और भाई साहब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच, 10 रेज टू 3 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। कैंसिल हम भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू 17 माइनस 3, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 14, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा। अगर आप 2 इंटू 10 रेज टू 14 भी लिख रहे होंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आप मानकर चल सकते हैं इसका वैल्यू हमेशा 2 इंटू 10 रेज टू 17 ही आएगा, 2.3 2.2 ठूस सकते हो, आपके ऊपर है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरी एटम। ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्या डिस्कवर हुआ भाई साहब, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, अरे बाप रे, ओके। सो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, देखो सब वही, सबके कनपट्टी में बंदूक थी भाई साहब, 1932 से लेकर 1945 तक सारे डिस्कवरीज हुए, ठीक है। When beryllium nuclei was bombarded with alpha particles, then nuclear radiation was emitted. तो बेरिलियम का जो न्यूक्ली है, ठीक है, was bombarded with alpha particles. Alpha particles अभी मतलब समझ में आ गया ना, क्या होता है बच्चा, अच्छा बताओ क्या होता है, हीलियम 2 प्लस होता है, अच्छा, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो हीलियम बन गया ये। अभी इसको हम किसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं, बेरिलियम। बेरिलियम क्या है भाई साहब, बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना है, देखो 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 इनको, हाँ 4, और एटॉमिक नंबर 4 है, ओके, और एटॉमिक मास, सो इट वाज बॉम्बार्डेड, बेरिलियम एटम को बॉम्बार्ड किया गया है अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। सो बेरिलियम एटम को अल्फा पार्टिकल से अगर हम बॉम्बार्ड करते हैं, एटॉमिक नंबर आपका 4 है, और ये आपके हीलियम पार्टिकल्स हो गए, हीलियम आपका भाई साहब यहाँ पे अल्फा बन चुका है,
मतलब हम दिखाने को तो 2 4 दिखा रहे हैं, लेकिन हीलियम इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो दीज आर गामा रेज विच आर एमिटेड, ठीक है, दीज आर गामा रेज विच आर एमिटेड। सो देन चैडविक प्रेडिक्टेड दैट द न्यूट्रल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तो चैडविक बोला भाई साहब यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो 9 + 4 13 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए भाई साहब 4 + 2 6 होना चाहिए, है ना। इसने बॉम्बार्ड किया तो यहाँ तो 6 मिल रहा है उसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 + 4 13 की जगह पे उसको मिला 12, ये होना चाहिए था, बट व्हाट ही गॉट वाज दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक एक न्यूट्रॉन मिल रहा है उसको, ये न्यूट्रॉन से पता चल गया कि एक न्यूट्रल कैरेक्टर भी होता है एटम में, ठीक है। एंड देयर वाज ऑब्वियसली एनर्जी दैट वाज देयर, ठीक है। सो दिस रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। The natural radiation supposed to have more than available form of bombardment of beryllium nuclei with alpha particles, ठीक है। तो आपका भाई साहब बेरिलियम न्यूक्लियो को अल्फा पार्टिकल से जब हमने इसको ये किया, ठीक है, दीज आर बेसिकली न्यूट्रॉन्स, ठीक है, हमको न्यूट्रॉन्स मिले, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स थे भाई साहब, ठीक है। सो आयनाइजेशन चेंबर है, सो दिस वाज बेसिकली पोलोनियम और बेरिलियम को बॉम्बार्ड किया गया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर न्यूट्रॉन्स पे होने वाला है सर जी? नहीं होने वाला ना भाई साहब, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का और ना ही मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर न्यूट्रॉन्स पे होने वाला है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स, इट इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये स्टेबल होता है, और आउटसाइड अगर आप न्यूक्लियस के बाहर लेकर जाओगे न्यूट्रॉन्स को तो अनस्टेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भी रखो वो स्टेबल ही रहेंगे, ठीक है। ओके, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज अबाउट 100 सेकेंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ पीरियड? 1000 सेकेंड, मतलब इसकी आधी उम्र। ये हाफ लाइफ पीरियड में हम रेडियो एक्टिव डीके को कैलकुलेट करते हैं, विच वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सटेंसिवली इन सम टाइम। अभी आप शायद इसको ना समझ पाए या समझ भी पाए, ठीक है। हाफ लाइफ जो है दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन सम टाइम, ठीक है। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज अबाउट 1000 सेकेंड। तो हाफ लाइफ पीरियड भाई साहब कितना है? 1000 सेकेंड है। तो चाचा यही बीड़ी जला रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज अबाउट 1000 सेकेंड। कितनी गालियां दे दी उन्होंने भाई साहब। ओके, इट डिकेज बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन का भाई साहब दिस प्लस ये आपका, वी विल अंडरस्टैंड दिस लेटर, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन का इट्स मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ये इंपॉर्टेंट है। ये डीके का जो प्रोसेस है वी आर गोइंग टू एक्सटेंसिवली लर्न इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, बट दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट्स मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। मतलब आपके भाई साहब एटम में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास है वही मास है, इलेक्ट्रॉन्स गया भाड़ में, हम उसका मास लेते ही नहीं, ठीक है, बिकॉज इट इज टू लेस टू बी कंसिडर्ड। ओके, the composition of a nucleus can now be described using the following terms and symbols. Atomic number is equal to number of protons, neutron number is equal to number of neutrons, ठीक है। n ये आपका z हो गया भाई साहब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। इन अ हम बोल सकते हैं न्यूट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज द अदर वे ऑफ सेइंग इट, ठीक है। ओके, न्यूट्रॉन भाई साहब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए mass number that is z plus n, total number of protons plus total number of neutrons. Okay, neutrons are dragon न्यूट्रली चार्ज, सी भाई साहब ब्लू दिख गया भाई साहब, तो उसी में टिक होगा भाई साहब। ओके चलिए, हमसे ही गलती हो गई। ओके, न्यूट्रॉन्स हैव लो पेनिट्रेटिंग हाई आयनाइजिंग पावर। देखो पहली बात, न्यूट्रॉन्स आयनाइज कर सकते हैं क्या? आयनाइज कौन कर सकता है? जो खुद चार्ज हो। तो न्यूट्रॉन्स आयनाइज कर सकते हैं क्या? ठीक है, किसी को भगाकर या किसी को ऐड करके। देखो जब आप बॉम्बार्ड करेंगे न्यूट्रॉन से तो वो भगाएगा या तो ऐड करेगा, ठीक है। डू दे हैव आयनाइजिंग पावर? ठीक है, आयनाइजिंग पावर भाई साहब इनकी बहुत कम होगी, दे विल हैव वेरी लो आयनाइजिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, बट दे विल बी एबल टू
बेसिकली पेनिट्रेट, ठीक है, दे विल बी एबल टू पेनिट्रेट हाउएवर वेरी लो आयनाइजिंग पावर, ठीक है। ओके, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो मास और एनर्जी में जो खेल चल रहा है भाई साहब, द अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल मतलब गरीब हीलियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन भी उसके छीन लिए, ठीक है, ये जा रहा था भाई साहब, इससे 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, उसको बना दिया हमने He2+, ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल। तो ऑब्वियसली 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स की कहानी हो गई, अभी इलेक्ट्रॉन जो था उसका तो गया, ठीक है, तो उसके पास अभी क्या बचे हैं, 2 प्रोटॉन्स बचे हैं और 2 न्यूट्रॉन्स बचे हैं, दिस इज बेसिकली आपका हीलियम, ठीक है, और हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म। द मास ऑफ एक्चुअल अल्फा पार्टिकल इज दिस मच, आपका अल्फा पार्टिकल का इतना मास है, ठीक है, 4.0015। द टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज दिस मच, ठीक है, तो इसका मतलब ये घपला क्यों हो रहा है, देखिए समझिए, आपने अभी प्रोटॉन्स का मास निकाला, न्यूट्रॉन्स का मास निकाला, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का मास आपका इतना आना चाहिए, मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपके हीलियम में, सोचिए इस चीज को, क्योंकि आपको अभी मास और एनर्जी का इक्विवेलेंस समझना है, E इज इक्वल टू mc², जो आइंस्टाइन ने बताया था वो कहां से आ रहा है, ठीक है। हीलियम पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से बना है, 2 प्रोटॉन्स का अलग से मास निकाल लो, 2 न्यूट्रॉन्स का अलग से मास निकाल लो, तुम्हारा टोटल आएगा इतना, जबकि तुमको एक्चुअल अल्फा पार्टिकल का मास भाई साहब इतना मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वेयर हैज दिस एनर्जी गॉन, ठीक है, तो वेयर हैज दिस एनर्जी गॉन, आपका भाई साहब एनर्जी किधर चला गया, इसको ऐसे समझो भाई साहब, इनके पास एक नोटबुक है भाई साहब, इस नोटबुक के मैं अगर टुकड़े टुकड़े कर डालूं और सारे पेपर को ऐसे बिखरा दूं तो पूरे कमरे में पेपर्स फैल जाएंगे, लेकिन इस नोटबुक को अगर हमने बाइंडिंग करके रखा हुआ है तो दे आर ऑल आइसोलेटेड एट वन प्लेस, ठीक है, दे आर ऑल आइसोलेटेड एट वन प्लेस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करा रहे हैं, जब एक साथ मिल जा रहे हैं वो, तो आपकी एनर्जी घट जा रही है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसी हो रही, मतलब बाइंड कर रहे हैं आप, तब आपकी एनर्जी घट जा रही है, क्लियर है, ठीक है। ओके, सो जैसे अगर आप भाई साहब किसी क्लास में टीचर ना हो, चाहे वो 12th चैप्टर का क्लास हो चाहे किंडरगार्टन हो, भाई साहब हंगामा, ठीक है, तो मतलब कोई एनर्जी नहीं है, देयर इज नो बाइंडिंग एनर्जी, सो सब चितर बितर भाई साहब, ठीक है, सब चितर बितर, तो आपकी एनर्जी ये वाली होगी, दिस विल बी द एनर्जी, हाई एनर्जी, ठीक है। जैसे ही भाई साहब कोई शासन करने आ गया, ठीक है, कंट्रोल करने आ गया, वो चाहे पियोन ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी घट जाएगी, द एनर्जी विल डिक्रीज, सिंपल, ठीक है, ये इसी को हम बोलेंगे भाई साहब, जैसे ही वो साथ में आएंगे और ऑर्गेनाइज होंगे, द एनर्जी विल डिक्रीज, द एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का भाई साहब इतना मास आ रहा है, और यहाँ पे आपका जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल की जो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ है, उसका भाई साहब इतना हो गया, तो इसका मतलब आप सोचिए, हीलियम से अल्फा पार्टिकल बनाए जो एक गरीब सा एटम है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को कैरी करता हुआ, जब हम हायर एटम्स में जाएंगे, यहाँ पे तो आपको बहुत कम सा एनर्जी का कन्वर्जन दिख रहा होगा, 320-014 एटॉमिक मास यूनिट ना भाई साहब, इतने का ही दिख रहा होगा, है ना, इसको माइनस करेंगे तो जितना आएगा आपका 5 + 5 10, ये हो गया 1 से बन गया 0, 3 से 2 गया, तो ये इतना आ रहा है भाई साहब, 0.20, विच इज हार्डली एनी एनर्जी, बट व्हेन यू गो ऑन टू हायर एटम्स, ठीक है, जहां से भाई साहब आपका ऐसा बना है, तो विल देयर बी अ लार्जर डिफरेंस, यस, द मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट यू आर बाइंडिंग, द मोर विल बी द एनर्जी डिफरेंस, जितना ज्यादा आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की आप बाइंडिंग करेंगे, उतना ज्यादा आपको एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, आर वी क्लियर, ओके। So the difference in the above two masses is due to the binding energy of the alpha particle. तो इसी को अपन बोलते हैं भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड किया है हमने, इसमें एक एनर्जी की खपत हुई है, जिसके वजह से आपके सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इनके पास जो एनर्जी था, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये बाइंडिंग का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। फॉर द अल्फा पार्टिकल m इज इक्वल टू दिस मच एंड बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच, तो अल्फा पार्टिकल के लिए डेल्टा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.305, ये तो इधर से आ गया भाई साहब 320 में से, अब इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 320 में से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और भाई साहब कितना हो गया बाइंडिंग एनर्जी, ये हो गया 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आपका हो गया मास और ये हो गया एनर्जी, ये कैसे आया रहेगा भाई साहब, अरे ये मास है ना, देखो कितना है, ये एटॉमिक मास यूनिट है, तो आप इसको कर लो 0.0305 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये हो गया, आपने केजी में कन्वर्ट किया, अभी इसी को आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो इंटू सी का स्क्वायर कर दो, दैट इज 3 इंटू 10⁻8
इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया भाई साहब एनर्जी। अभी ये आया आपका किसमें, जूल्स में आया। जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर दो भाई साहब, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को भाई साहब आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं, दैट इज ऑल। ठीक है, इसको लिख लीजिए 305 एटॉमिक मास यूनिट एंड दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, फॉर दी अल्फा पार्टिकल भाई साहब ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ये तो समझ में आ रहा है भाई साहब, ये वाला डिफरेंस कहां से आया। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और इसको कैसे कन्वर्ट करना है भाई साहब, मास का एनर्जी इक्विवेलेंस होता है डेल्टा एम सी का स्क्वायर, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिलेगा जूल्स में। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और फिर आपको ये मेगा मिल जाएगा। मेगा मतलब होता है 10⁶। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन भाई साहब। बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब कैलकुलेशन, ये एक ऐसा चिंदी चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, और कैलकुलेशन मतलब आपके ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है, जहां पे डेसिमल पॉइंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, ओके। द अल्फा पार्टिकल्स हैज लोअर एनर्जी देन अ कलेक्शन ऑफ सेपरेटेड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इससे हमारा सिद्ध होता है क्या कि भाई साहब थोड़ा बहुत मास आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, वैसे मैंने आपका इसका इनका बुक का एग्जांपल दिया, तो इसमें जो बुक में जो बाइंडिंग हुई है वो वाला सरफेस तो आपका भाई साहब यूज्ड अप हो गया ना। जब आप पेज को लूज रखते हैं तो आपको पूरे पेज का एक्सेस रहता है, लेकिन उतना पोर्शन तो आपको एक्सेस नहीं रहता है ना। ठीक है, दैट इज ऑलरेडी बाइंडेड अप। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि इतना सा चिंटू सा मास जो है उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा अगर ये आकर एक साथ बाइंडिंग होंगे तो। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Since the protons in the nucleus are charged particles, they have a potential energy associated with them. ठीक है भाई, प्रोटॉन्स हैं आपके न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल्स, किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि उसके आजू बाजू एक फील्ड क्रिएट होगी, उसके आजू बाजू एक फील्ड क्रिएट होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों क्रिएट होगा बताइए, और क्या है। एक चार्ज पार्टिकल है, उसके आजू बाजू पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो अभी इससे पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्रिएट होगी। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा, फटफट भाई साहब। फिजिक्स मतलब आपको ना बहुत जल्दी सोचना है चीजों को। अरे भाई साहब, आप अगर देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के भाड़ में, चलो पॉजिटिव चार्ज है, उसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज को लाओगे तो क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा। भाई साहब रिपल्शन क्रिएट होगा। कभी भी तुम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो तो बॉडी में क्या स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। एक भाई साहब ईंटा जो यहाँ पे गिरा हुआ है, उसको मैं अगर छत के ऊपर रख दूं तो वो ईंटा जो जिसका कोई डिस्ट्रक्शन वैल्यू नहीं था,
अभी उसी ईंटी को खिसका दो कि इंसान की जान ले सकता है, कार पे गिर गया तो कार टूट सकती है भाई साहब, ठीक है. इट causes massive destruction. All of a sudden, where is it gain the energy from? So what you have done is you have done work against the gravitational force, and this work that you have done in lifting it up against the gravitational force has actually stored the kinetic energy, stored the energy in it. वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है, जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो जब भी आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो, उस बॉडी में भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. अभी तुम इसको समझो, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. तुम भाई साहब न्यूक्लियस में इनको डालना चाहते हो, क्या इनके अंदर रिपल्शन रहेगा? इतने सैड क्यों हो भाई साहब? ठीक है, तो भाई साहब यहां पे अगर इनको लाना चाहते हो, अगर पास लाना चाहते हो, तो विल देयर बी अ रिपल्शन? तो विल देयर बी अ फोर्स एक्सर्टेड टू ब्रिंग देम टुगेदर? इफ देयर इज अ फोर्स एक्सर्टेड टू ब्रिंग देम टुगेदर, will there be an increase in the potential energy? बढ़ेगी भाई साहब, ठीक है. आप उनको सेपरेट करने जाओ कोई पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे उनको पास लाने जाओगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट द सिस्टम. आप फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो. फोर्स आपका किधर है? इस तरफ है ना, रिपल्सिव फोर्स है ये, ठीक है. तो आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं. जब उनको आप कलेक्टिवली न्यूक्लियस बना रहे हैं तो यू आर वर्किंग अगेंस्ट इट, ठीक है. तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है. दिस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द टिपिकल एटॉमिक energy scale around 10 electron volts. Since the protons in the nucleus are charged particles, they have a potential energy associated with them. और ये काफी बड़ा होगा भाई साहब, ठीक है. ओके, so this is much larger than the energies associated with the electrons, molecules and the chemical reactions. ये काफी ज्यादा है भाई साहब, ठीक है. This energy is much larger than the energies associated with the electrons, molecules and the chemical reactions, ठीक है. ओके, so electric potential energy of protons in a nucleus is of the order mega electron volt. ये भाई साहब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है. ऑब्वियसली होगा भाई साहब, 10 प्रोटॉन्स को तुम साथ में रख रहे हो, मतलब सोचो इलेक्ट्रॉन्स को तो फिर भी घूमने का मौका मिल रहा है अलग अलग ऑर्बिट्स में. प्रोटॉन्स भाई साहब एक क्लस्टर में हैं, तो कितना ही पोटेंशियल एनर्जी तुम बढ़ा दो, ठीक है. सो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस में कितना है भाई साहब, इज टू अ ट्यून ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब है, ठीक है. So that's a huge amount of energy. Obviously, you will need that energy. The potential energy associated with strong force is negative and also of the order of mega electron volt. Okay? Potential energy associated with strong force is negative. Okay? And also of the order of mega electron volt. The principle of equivalence, according to the principle of equivalence which was proposed by Einstein, okay, E is equal to m का c का square. किसी भी मास को जब आप डिसॉल्व करते हो तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है. इफ यू आर एबल, देखिए मास is going to remain constant, लेकिन अगर मास को तो आप डिसॉल्व कर रहे हो तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है किसी मास को. द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, ठीक है. दिस इज द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास. मतलब किसी मास को अगर आप प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो इतना एनर्जी उससे मिल जाएगा, ठीक है. द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, द मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय ऑब्वियसली मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है. एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास, मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब अगर आप किसी मास को तोड़ रहे हो तो उसमें से एनर्जी निकलेगी. क्यों निकलेगी? क्योंकि उसको बाइंड करने में एनर्जी लगी है. जब आप उसको तोड़ोगे तो वही एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी. देखो इस चीज को समझो. आप इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओगे फिलहाल, इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं भाई साहब अपना. अभी प्रोटॉन्स को जब आप ला रहे हो साथ में, तो विल यू रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कीप देम बाइंडेड टुगेदर? Obviously there is a huge amount of repulsive force that exists between them. So in order to make the atom stable or the way it is, will you require a huge binding energy? Yes, you will. Okay. Now these protons are all binded together. If you happen to break the atom, explode the atom, whatever, आपने भाई साहब तोड़ दिया, सब कुछ एक्सप्लोड करा दिया, तो ये पूरा बिखर गया. अगर ये भाई साहब जा रहा है तो वो एनर्जी को भाई साहब देता हुआ जाएगा ना. सो इसीलिए हमारा एनर्जी इज टू मास इक्विवेलेंस आ रहा है. एनर्जी, अगर आप मास को तोड़ रहे हैं तो इतना एनर्जी भाई साहब लिबरेट होगा. हर एक मास को तोड़ने से इतना एनर्जी भाई साहब आपका आ जाएगा, ठीक है. एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास, मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? क्योंकि मास जो है आपके एटम का, वो कंसर्न है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से जो न्यूक्लियस में है. इलेक्ट्रॉन्स के बाहर में. In this chapter or rather the topic, you hardly discuss anything about the electrons. All you're discussing is about neutrons and protons. Nucleus के अंदर जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. The principle of equivalence used to estimate the binding energy of the nucleus. तो अगर हम भाई साहब इसको देखें और हमको पता चल जाए कि कितना एनर्जी एक मास को तोड़ने में लग रहा है, तो क्या हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस.
ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, इट विल डिपेंड अपॉन ईच एंड एवरी प्रोटॉन दैट इज एसोसिएटेड, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर एक न्यूक्लियस की एक बाइंडिंग एनर्जी होगी। टू एस्टिमेट द एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन कॉल्ड क्यू वैल्यू, ये हम देखेंगे भाई साहब क्यू वैल्यू कितना होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। देखो रेडियो एक्टिविटी थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और हर बार उनमें से एनर्जी निकलती है। तो कोई समझ लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए है, इसका भाई साहब बना A1 और A2, डिसइंटीग्रेशन हुआ। इसका भाई साहब बना A3 और A4, फिर से डिसइंटीग्रेशन हुआ। इसका भाई साहब बना A5 A6, ये भाई साहब डिसइंटीग्रेशन चेन रिएक्शन चलता रहेगा और हर एक में एनर्जी रिलीज होती जाएगी, हर एक में। यही है आपके न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रिंसिपल। इतना एनर्जी उसमें एसिमुलेट हो जाएगा और भाग से फूटेगा भाई साहब, ठीक है। दिस इज बेसिकली द एटॉमिक जो आपके बॉम्ब्स बनते हैं उनका प्रिंसिपल है। हर एक प्रोसेस में कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि आपका मास घट रहा है, और जब मास घटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इसका मतलब प्रोटॉन्स निकले हैं, मतलब प्रोटॉन्स जो बाउंडेड थे अभी अभी अलग हो रहे हैं। तो अगर अलग हो रहे हैं तो ये जो एनर्जी अभी इनको बाउंड करके रखी है वो तो निकलेगी ना भाई साहब, ठीक है। दिस इज द एनर्जी विच इज रिलीजिंग, दिस इज द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ इट। इसके बाद हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट कि बाइंडिंग एनर्जी है प्रोटॉन्स को बाइंड करने की एनर्जी। न्यूट्रॉन्स तो नल्ले गुल्ले भाई साहब, उनका तो कोई चार्ज है नहीं, उनको भाई साहब इकट्ठा रखो या आप सेपरेट रखो, उनका कोई एनर्जी का वैल्यू नहीं है। लेकिन प्रोटॉन्स का एनर्जी का वैल्यू है, क्योंकि वो चार्ज है और उनको अगर आपको समेट के रखना है तो आपको भाई साहब एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आप उसको एक्सप्लोड कराएंगे तो भाई साहब चिटर बिटर हो जाएंगे, तो वो एनर्जी निकलेगी, ऑब्वियसली निकलेगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं? ओके, तो टू एस्टिमेट द बाइंडिंग, भाई साहब आप देखो, आप एक बुक को क्या ऐसे फूक करोगे फट जाएगा क्या? नहीं ना भाई साहब, जैसे ताकत लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इन्वॉल्व है। उन पेपरों को बाइंड करने के लिए एक एनर्जी लगी है, ठीक है। तो ऐसे भाई साहब आपको बुक्स का पेपर फाड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्रिएट एन एनर्जी इन ऑर्डर टू सेपरेट देम, ठीक है। ऐसा ही भाई साहब आपका प्रोटॉन्स का चक्कर भी है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज, तो यही आपका बोलते हैं हम क्यू वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द क्यू वैल्यू। अगर आपको मालूम है कि दो प्रोटॉन्स के बीच में एक एटम में कितनी एनर्जी है, तो उसको तोड़ने की एनर्जी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। Okay, so Albert Einstein's theory of special relativity expresses the fact that mass and energy are the same physical entity and are interchangeable. इन्होंने बोला भाई साहब E और M जो है तो सेम फिजिकल एंटिटीज हैं और एक दूसरे में चेंज या कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट, so Albert Einstein's theory, amount of matter contained in an object, mass is an idea about the amount of energy in a body, ठीक है। amount of matter contained in an object and mass is an idea about the amount of energy in a body, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? If energy of a body is increased by the amount E, its mass is increased by M. E is equal to mc square, M is equal to E by c का स्क्वायर। तो मास और एनर्जी का ये इक्विवेलेंस हो गया, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता रहेगा। मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, ये दोनों भाई साहब आपस में इंटरचेंजेबल है। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम समझ में आ रहा है? ये मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कंटिन्यूअसली चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है वही आप तोड़ रहे हैं। मास ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन, और जब आप उसको एक्सप्लोड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? तुम सो गए हो या सोने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ओके। विच हैज मोर मास, अ स्टेशनरी बॉल और एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल, ठीक है। तो मूविंग बॉल का मास भाई साहब देखो, अगर आप देखोगे एक मूविंग बॉल है तो क्या हो जाएगा, एक स्टेशनरी बॉल का मास प्लस एक्स्ट्रा भाई साहब उसकी एक एक मास। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी स्टेशनरी बॉल का भाई साहब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन सी का स्क्वायर प्लस हीट एनर्जी अपॉन सी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी बेसिकली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो उसने एक्वायर किया है अपॉन सी का स्क्वायर, और हीट एनर्जी जो उसने एक्वायर किया अपॉन सी का स्क्वायर। सी की वैल्यू इतनी होती है भाई साहब, ठीक है। सो आपका भाई साहब 3 into 10 raised to 8 raised to square, तो m एक्स्ट्रा की वैल्यू ड्रॉप होगी। बोथ द काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉल इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू c का स्क्वायर। द मास ऑफ द मूविंग बॉल विल बी नेग्लिजिबली लार्जर देन द स्टेशनरी बॉल। और आपने देखा रहेगा कि हम रेस्ट मास या मूविंग मास को क्या बोलते हैं, ये आपका रेस्ट मास होता है अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास, ये है मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिकली मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और ये हो गया भाई साहब आपका रेस्ट मास,
ये हो गया आपका रेस्ट मास, ये v हो गया भाई साहब आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये c हो गया आपका भाई साहब वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इतना कम होगा, देखो भाई साहब ये c का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻16। 1 से अगर कोई चीज तुमको कम करनी है तो डिनोमिनेटर तो देखो ऑलमोस्ट कितना हो गया, देखो यहाँ पे समझो इस चीज को, यहाँ पे इसको ही समझते हैं। ठीक है, ये आपका v स्क्वायर है, वो जो भी रहने का, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो 10⁻17। 10⁻17 का मतलब समझते हो, मतलब ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो इसके करीबन होनी चाहिए, वरना तो क्या होगा, जैसे समझ लो अगर ऊपर आपका कोई बॉडी है, कितना स्पीड दोगे, लेट्स एक एरोप्लेन का स्पीड ले लेते हैं 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या अपन और ज्यादा ले लेते हैं 5/18 वाला 1800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा खासा स्पीड है भाई साहब, एरोप्लेन का स्पीड है ये। ठीक है, 1800 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हमने भाई साहब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बी हाउ मच, 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया बच्चा बाड़ी कितना आएगा, 25 और 1 2 3 4, 25 इंटू 10⁻4, नीचे कितना है भाई साहब आपका 10⁻17 है ना, 10⁻17 है, 1 माइनस है भाई साहब, अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 इंटू 10⁻4 माइनस 17, दैट इज -13, 10⁻−13। अब मतलब समझो इसका क्या होगा, 1 माइनस 0.0000000 ऐसा करते करते भाई साहब यहाँ पे कितने जीरोज आ जाएंगे सोच लीजिए भाई साहब, ये 13 12 मतलब 11 जीरोज इधर आ जाएंगे, तो इसका क्या ही वैल्यू होगा, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आप इतने हाई स्पीड के एक रॉकेट को या इतने हाई स्पीड के एक एरोप्लेन को जब आप चला रहे हैं तो क्या उसके मास में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, आंसर इज यस, बट इतना कम आएगा कि आपका डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होगा ना भाई साहब, ये 1 माइनस 0.000 इसका कितना वैल्यू आएगा भाई साहब, 1 ही आ जाएगा ऑलमोस्ट, तो आप भाई साहब इसको इग्नोर कर देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू bodies which have velocities close to that of light, let's say इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, तब भाई साहब आप इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर 10⁻17 नीचे आपका डिनोमिनेटर है और ऊपर कहीं पे आपका ऑर्डर आ गया लेट्स से 10⁻14 तक, तब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो देन देयर विल बी अ डिक्रीज इन द मास, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कि जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, इनमें भाई साहब मास का फ्लक्चुएशन किस तरह से होता है, और इसको हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।